Hello all, welcome to this video. In last video we discussed about what is weight loss plateau and why do people get into a plateau in the journey for transformation. We also discussed about something like body's set point. That means whenever you are on a diet or exercise plan, what happens? Your body has a natural tendency to resist the changes. Your mind wants to lose weight and get in shape, but what a body wants, the body wants not to change the status quo. That means whenever you want to try some diet plan, some exercise plan, whatever things you are doing to lose the weight, the body will try to bring it back in a certain set point. And why it is happening? It is because the body feels that it is getting to a starvation mode. It is tries to avoid that, and what it does for that, it tries to change the hormones. For example, increase those hunger hormones like ghrelin and try to make you feel less full so that you feel more hungry, and you try to eat more. When you eat more, you are going to come back to your original weight which you have lost. So that is how the body doesn't allow you to lose weight. Secondly, happens is the body also optimizes itself like a mobile phone. It optimizes so that whenever you're on a diet plan or some following certain diet, your body tries to consume less calories for your regular activities. For example, if you're doing a workout or some kind of other activity which generally takes, let's say, 200 calories to burn, it becomes 150 calories because the body will optimize by itself. In that case, your metabolism slows down. When your metabolism slows down and you have the hormonal changes in the body, so you get into something where it is known as plateau. Now the question is how to know that you are on a plateau. That is important. So today I will talk about very important checklist for you so that you'll know that whether you're on a plateau or you're not on a plateau. Let's talk about that. Right. So the first thing I would like you to know that whenever you are on a plateau, you have to understand the duration of that, right? So generally plateau happens for 8 to 12 weeks of time. That means if you are, for example, there are many people, बहुत लोग होते हैं जो कि मतलब प्लान स्टार्ट कर लिया है और फिर उनका 15 दिन कुछ लूज़ हो गया 1-2 kg, उसके बाद उनका वेट स्टक हो गया है, वो नीचे कम नहीं हो रहा है, उनको लगता है कि मैं प्लाटो में चला गया और फिर वो बहुत ज़्यादा ही मतलब टेंशन में आ जाते हैं. दे स्टार्ट पैनिकिंग एंड व्हाट दे डू इज़ दे डू लॉट ऑफ ओवर ट्रेनिंग. व्हाट इट डेट मीन्स दे डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस सडनली. दौड़ने लगते हैं ट्रेडमिल पे या तो भागने लगते हैं, कुछ कुछ करते हैं, दे डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन दे स्टॉप ईटिंग फूड. दे स्टार्ट गेटिंग द मोर रेस्ट्रिक्टिव डाइट. तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज सो व्हेनेवर इन अ प्लाटू इफ़ यू डू थिंग्स लाइक रेस्ट्रिक्टिव डाइट एंड यू गो फॉर heavy exercises, it is not going to solve a problem because you have not understood the root cause. आपको root cause को समझना पड़ेगा कि आपके प्लाटो सही में हुआ है क्या. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्लाटो नहीं है पर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि आपका बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग. तो उससे क्या होगा, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग. तो पहले हमें समझना है कि am I on a plateau. सो हाउ टू नो दैट. अगर आप 8 से 12 हफ्ते you are stuck at certain weight, your weight is not coming down, and you are still there for a long time, then you can say you are on a plateau. But there are some other conditions I will talk today which also need to be satisfied to make sure that you are on a plateau. तो अगर आप उस ड्यूरेशन में नहीं हो, आप 8 से 12 हफ्ते यू आर नॉट इन दैट ड्यूरेशन, आप बिफोर दैट यू आर जजिंग कि मैं प्लाटो में जा चुका हूँ और मेरा वेट जो है कम नहीं हो रहा है, देन इट इज़ नॉट राइट. तो आपको समझना पड़ेगा कि दिस ए टेम्पररी फेज द बॉडी इज ट्राइंग टू एडजस्ट इट सेल्फ. कभी ऐसा हो सकता है कि आपका 1 हफ्ता कम नहीं हुआ, उसके बाद भी आपका कम हो सकता है, पर आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा. एंड यू शुड नॉट बी जजिंग टू अर्ली. एंड दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल मेक ए मिस्टेक, दे लूज पेशेंस एंड दे डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स. एंड व्हाट हैपेंस, एक्चुअली डिक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है एंड आप उतना मेहनत नहीं करते हो. उससे क्या होता है कि वेट वहीं पर रहता है. देन फाइनली बिकम्स ए प्लाटू. जो नहीं हुआ अभी तक वो हो जाता है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक 8 से 12 हफ्ते हमारा नहीं हुआ है, अपना वेट स्टक नहीं हुआ है, तो हम उसको प्लाटू बोल ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, एक चेकलिस्ट में आपको बताऊंगा जो कि आपको जस्ट टेक इट लाइक एन इनपुट फॉर योर कंसिडरिंग वेदर इट इज़ ए प्लाटू और नॉट ए प्लाटू. सो चेकलिस्ट में क्या क्या है. फर्स्ट थिंग, हाउ अबाउट योर न्यूट्रिशन. Many times what happens, we talk about the output but we do not talk about the input. We don't talk about the basics. So the basics has to be clear. First of all, is your nutrition is fine, is it sorted? Most people don't have it sorted. They still go for other habits like आपने weekdays में अच्छा खाना खा लिया, फिर weekend में बहुत ज़्यादा आपने इधर उधर का खाना खाया. So then it becomes a problem. तो आपको देखना है कि वो खाने में प्रोटीन है क्या.
डू हैव एनफ प्रोटीन इन योर डेली डाइट, एंड डू हैव एनफ फैट, और आपके काफ्स सही चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स काफ्स, यू आर ईटिंग एनफ, हेल्दी फैट खा रहे हो आप, हाई इनके जो हाई HDL, इन लोइंग द LDL थिंग, एंड आपका फाइबर कैसा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आर यू ईटिंग एनफ, ये चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब पीपल व्हेन दे गेट इनटू सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव डाइट, जैसे कीटो डाइट है या तो कुछ एटकिंस डाइट एंड ऑल, सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, दे आर मे नॉट बी ईटिंग एनफ कार्ब्स, तो कहीं ना कहीं पे आपके खाने में प्रॉब्लम है, राइट, एंड दैट रिजल्ट्स मे नॉट बी प्लेटो, इट मे बी समथिंग एल्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि अपना जो खाना है, इज इट बैलेंस एनफ, इज इफ नॉट बैलेंस एनफ, देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स विच यू, it's very difficult to reverse that. So first of all, let's sort out the nutrition plan, it should be proper. Secondly, आपकी जो exercise है वो कैसा है, is it something, are you doing 5 days a week? Typically as per the recommendation, you should be doing around 150 minutes of workout every single day. So are you doing that? या आप कम कर रहे हो? आप अगर 4 से 5 दिन पर डे स्पेंड पर वीक यू आर नॉट स्पेंडिंग फॉर वर्कआउट, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्टिव एनफ. So it's not only workout, it's all about being active. That means you might be walking, you might be going somewhere, you might be doing some activities which are towards confirming that you're doing some activity. So अगर आपका वो चीज़ नहीं है कि आपका जो 150 minutes you are not spending, 5 days a week you are not spending for workout, then something is not there. तो इनपुट आपको चेक करना पड़ेगा. हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि वेट कम नहीं हुआ, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्लान को हम ब्लेम करने लगते हैं, प्लान को चेंज करो, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, पर आपने ये नहीं देखते कि आपने इनपुट सही है क्या आपने सही काम किया हुआ है, कि आपने चेकलिस्ट देखा हुआ है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं. नहीं चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं वहीं पे काम करना पड़ेगा, नॉट लुकिंग एट द आउटपुट, बिकॉज इनपुट इज़ रॉन्ग, आउटपुट विल बी रॉन्ग. तो नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेस लेवल कैसा है. व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स व्हेन द पीपल स्टार्ट ए प्लान, मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर रेडी फॉर लूजिंग वेट, पर बाद में क्या होता है कि लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं, आपने कहीं ट्रैवल कर रहे हो या तो कोई कमिटमेंट आ गए, तो उस केस में आपका स्ट्रेस, यू माइट हैव अ डिफरेंट माइंड सेट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट मेंटल सिचुएशन. तो उस केस में आपका हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा है. तो स्ट्रेस ज़्यादा होने से कभी कभी द वेट डजंट come down, it stays for a certain level because you have more cortisol in the body, more cortisol, more stress, more cortisol, that means you will have you have more fat, your body will be storing. तो ये स्ट्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस को देख रहे हो, कि आर यू चेकिंग आउट योर स्ट्रेस. नेक्स्ट, आपका स्लीप कैसा है, आर यू स्लीपिंग एनफ. व्हेन आई से एनफ, टिपिकली आई विल सजेस्ट यू शुड स्लीप फॉर मिनिमम 7 to 9 hours a day. एंड आर यू स्लीपिंग इन द राइट टाइम, आर यू मेंटेनिंग ए स्लीप रिचुअल, जैसे कि आप रोज़ 10 बजे सोने जा रहे हो, इज इट हैपनिंग और नॉट. इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग. तो हमें ये देखना है कि आपका स्लीप पैटर्न सही है क्या. नेक्स्टली, हाउ इज योर वाटर इनटेक, हाउ मच वाटर आर ड्रिंकिंग पर डे, आर पर बॉडी वेट आर यू ड्रिंकिंग एनफ वाटर, और वाटर का इनटेक इज लेस. तो ये सब चीज़ें जो है हमें पहले चेक करना पड़ता है. तो पहले आपको चेक करना है, ऑल दिस चेकलिस्ट हैज टू बी देयर. कोच माइट हैव गिवन यू चेकलिस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर taking care of your basic nutrition, basic lifestyle, and your basic physical exercise, and you are pretty much on the right parameters which you are following every single day. अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका प्लाटो हो जाएगा, बिकॉज अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो आपका एक टेम्पररी फेज हो सकता है जो आपका वेट स्टक हो गया है, पर आपका परमानेंटली नहीं होगा. वेरी सुन यू विल कम आउट ऑफ इट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि आपको मेजरमेंट देखने पड़ेंगे. देखिए बेसिकली क्या होता है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, वी स्टैंड ऑन द स्केल एंड वी सी द नंबर, और नंबर जब हम देखते हैं इट डजंट कम डाउन, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. जैसे कि अगर मैं आपका खुद का वेट देखता हूँ, देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं 78 में स्टक हो गया था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 15 days 20 days. तो देन आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, माई वेट इज़ नॉट कमिंग डाउन. But actually what was happening, you know what, I was actually losing inches. तो इसका मतलब क्या है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, मेरा इंच लॉस हो रहा था. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें वेट लॉस में ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, हम फोकस ये नहीं करते कि हमें इंच लॉस कितना हुआ है. और लोग एक्चुअली व्हाट मैटर्स फॉर यू द फैट लॉस, यू डोंट रियली नीड टू मच वरी अबाउट द वेट लॉस. कभी ये हो सकता है वेट लॉस उतना नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा फैट लूज़ किया है एंड यू हैव कंपेंसेटेड विथ गेनिंग मोर मसल्स. तो आपका नेट आपका वेट उतना ही है, पर आपका कंपोजिशन बदल गया है, आई हैव मोर मसल्स इन द बॉडी, यू आर फीलिंग बेटर, आपके कपड़े फिट हो रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो गया है. बट यू नो व्हाट, इफ़ यू नॉट लुकिंग एट दोज पैरामीटर्स, आप खाली स्केल के ऊपर ध्यान रख रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि यू आर जस्ट लुकिंग एट नंबर्स, नंबर्स आर नॉट द राइट पैरामीटर. तो आपको ये देखना है कि आर यू एक्चुअली लुकिंग एट योर
दिस थिंग, इंच साइज आप देख रहे हो क्या? और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको ये रोज़ करना पड़ेगा, इट्स नॉट फॉर वन डे, यू हैव टू डू इट एवरी डे। आपको वेट कितना है, तो वेट आपने जो देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो वेट हम देखते हैं, कभी कभी हम वी डोंट चेक इट डेली, हम लोग हफ्ते में एक बार देख लेते हैं या तो 15 दिन में एक बार देख लेते हैं। तो कभी कभी डाटा may not बी राइट। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो वेट है, वेट आप डेली क्या है, व्हाट इज अ डेली, देन यू कैन टेक ए 7 डे एवरेज। तो जैसे कि आपका वेट आप बोलोगे स्टक हो गया है, तो आपने एक बार चेक किया है, हैव यू चेक इट येस्टरडे अगेन, हैव यू चेक इट, आई एम गोइंग टू चेक इट टुमारो। तो आप अपना वेट को बार बार देखते रहो, एटलीस्ट यू शुड सी इट 7 days इन अ वीक, देन यू कम टू नो वेदर इज फ्लक्चुएटिंग और नॉट फ्लक्चुएटिंग। करेक्ट? क्योंकि एक बार देखने से पता नहीं चलता, ये 2 बार देखने से पता नहीं चलता, कभी आपने वाटर रिटेंशन हो गया तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, पर ये हो सकता है कि आप बाद में चेक करोगे तो वेट आपका कम हो सकता है। तो आपको बार बार चेक करनी चाहिए। आइडियली यू शुड बी टेकिंग द मेजरमेंट्स एवरी सिंगल डे इफ़ यू फील यू ऑन अ प्लाटू, और इन जनरल ऑल्सो, ताकि आपको वो ट्रैक करने में फ़ायदा हो। तो फर्स्ट थिंग, चेक योर वेट एवरी सिंगल डे। सेकेंडली, आपका जो मैंने बताया कि इंच साइज, जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वेट लॉस शायद नहीं हुआ है पर आपका इंच लॉस हुआ है, बिकॉज यू गेन सम मसल्स, यू लॉस्ट सम फैट, कंपोजिशन बदल गया। तो अपना इंच देखिए, इंच का मतलब क्या, आपको देखना पड़ेगा आपका बेली साइज, आपका वेस्ट साइज क्या है अभी, हैज इट कम डाउन बाई कट सर्टेन इंचेस, और आपका हिप साइज फॉर लेडी, हैज इट कम डाउन, हाउ अबाउट योर चेस्ट, हाउ अबाउट योर, ऑल दिस मेजरमेंट्स यू नीड टू चेक इट आउट। तो उससे क्या पता चलता है कि शायद हो सकता है कि आपका वेट लॉस नहीं हुआ है, पर आपका बेली साइज जो है 1 इंच कम हो गया है, तो हिप साइज कम हो गया है। तो दैट्स ए ग्रेट न्यूज़, यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा उतना कम नहीं हुआ जितना होना था, जितना वेट कम नहीं हुआ, पर आपका इंच लॉस हुआ है, तो दैट शुड बी फाइन। मे बी यू हैव लॉस्ट certain inches and you gain some muscles. नेक्स्ट, आपको प्रोग्रेस पिक्चर लेनी चाहिए। आइडियली दिस इज़ व्हाट पीपल मिस आउट। जब लोग प्लेटो में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनसे पिक्चर मंगवाते हैं कि आपके पिक्चर भेजो, स्टार्टिंग डेट कैसा पिक्चर था, अभी कैसा पिक्चर, हम देखते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू शेयर ए, I mean, if you are working with the coach, make sure that you share a bare picture, because that the coach can make you understand better when you have a bare picture। क्योंकि पता नहीं चलता है, जो बेली फैट है कपड़े के ऊपर अगर पिक्चर लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना बेली फैट कम हुआ है, राइट? तो आपको अपने कोच को भेजने चाहिए पिक्चर्स, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच फैट यू हैव लॉस्ट। कभी कभी हम देखा है कि बंदे का वेट वही अटक गया है, पर उसका जो बेली फैट है जो बहुत ज़्यादा था, साइड प्रोफाइल से दिखता है कि कम हो गया है। एंड व्हेन यू सी दैट प्रोग्रेस, समटाइम्स जो हमें दिखता नहीं है, योर कोच कैन सी दैट, because coach might have seen, okay, this is how you used to look like and you are looking different but you are not able to observe। तो आपके प्रोग्रेस पिक्चर आप रोज़ लीजिए, एटलीस्ट till a time you don't feel confident about yourself, take your progress picture every single day and try to compare। शायद उतना चेंजेस नहीं आएंगे 1-2 दिन में, पर आपको अगर बार बार लोगे ना, इट शोज एन अकाउंटेबिलिटी एंड इट शोज दैट यू आर सीरियस अबाउट योर गोल्स। तो प्रोग्रेस पिक्चर में आपके बेली पिक्चर्स, जनरली बेयर पिक्चर्स, बेयर बॉडी पिक्चर्स, so that will help you to understand how much the difference you have brought in your health। नेक्स्ट एक, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, स्टेमिना कैसा है। अब ऐसा हो सकता है कि आप पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप शायद मतलब 2 स्टेयर अगर आप चढ़ते हो तो आप हाँफने लगते थे, अभी आप अच्छा कर पाए, 5 फ्लोर तक जा सकते हो, आपकी स्टैमिना बढ़ गया है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। जैसे आप पहले आप स्क्वाट करते थे 5 बार थक जाते थे, अभी 10 बार कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो, आप अपने डंबल उठा सकते हो, पहले आप 2 kg उठा रहे थे, अभी 5 kg उठा रहे हो, तो इट्स ग्रेट प्रोग्रेस। तो इससे आपको वेट का अगर कम नहीं हो रहा है, हाउ इट मैटर्स फॉर मी, इफ़ यू टेल मी, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई कैन डेवलप माई मोर स्टैमिना, मोर स्ट्रेंथ, दैट मीन्स आई एम एबल टू डू लॉट मोर थिंग्स देन व्हाट आई शुड डू बिफोर। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना में कितना डिफरेंस आया है, एंड डू यू फील हैप्पी अबाउट इट। आप पहले मूव नहीं कर पाते थे, आप मतलब यूज टू हैव पेन इन द बॉडी, नाउ द पेन हैज़ कम डाउन एंड यू फील दैट यू आर वेरी वेरी ईजी टू मूव, यू कैन डू लॉट मोर थिंग्स ईजिली। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि when you have more strength and more stamina, bones density have increased, your muscle density have increased, it is a great news in fact, you don't have to worry about anything else। नेक्स्टली, आपकी कंसिस्टेंसी कैसा है, जैसे कि आप पहले क्या करते थे, आप हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज करते थे, अभी आपने 4 दिन कर रहे हो, तो इट हैज़ इम्प्रूव योर कंसिस्टेंसी। तो आप उसको देखना पड़ेगा कि that is a measurement of your progress। So progress is not just about your weight, it's also about how consistently, how disciplined you are। जैसे पहले आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, अभी कर पा रहे हो, या तो आप यू आर एबल टू डू लॉट मोर एक्टिव थिंग, लाइक नंबर ऑफ स्टेप आपका बढ़ गया है। जैसे आपने जो जर्नी स्टार्ट किया था, आपके 5,000 स्टेप होते थे, अभी आपके 7,000 स्टेप हो रहे हैं, तो दैट्स ए प्रोग्रेस। सो यू हैव टू लुक एट दोज नंबर्स, जो कि दिखाता है कि आपने लाइफ में प्रोग्रेस की हो। लास्ट 15 days, 20 days, वट एवर यू आर सीइंग ए प्लेटू योर ड्यूरेशन, यू हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, सो दैट्स ए गुड न्यूज़ फॉर यू। नेक्स्ट थिंग हमें देखना पड़ेगा कि
और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? इंप्रूवमेंट में ये हो सकता है कि आपका स्लीप अच्छा हो गया है। पहले आपका थोड़ा डिस्टर्ब स्लीप था, अभी स्लीप बहुत अच्छा हो गया, आप अच्छे से सो पा रहे हो, मतलब यू गेटिंग ए साउंड स्लीप एवरी सिंगल डे, डिस्टर्ब नहीं रहते हो। आपके इफ़ अ लेडी योर पीरियड पेन, इफ़ यू टू पीरियड पेन, वो भी नहीं है, आपका पीरियड ठीक हो चुका है, ठीक टाइम पे आ जाता है। एंड आपका हेयर फॉल था, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, एंड डायसन था पहला, डायसन इशू अभी नहीं है, ब्लोटिंग इशू था, ब्लोटिंग इशू नहीं है, कॉन्स्टिपेशन इशू था, कॉन्स्टिपेशन इशू सॉर्टेड है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, दीज आर द प्रोग्रेस। तो आपको समझना है कि ओनली आपको खाली उसके ऊपर स्केल के ऊपर खड़े होके जस्ट लुकिंग एट द नंबर, ओके मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, टेंशन आ गया आप, तो आप सोचो कि आपके बाकी जो पॉजिटिव्स आप क्यों नहीं देख रहे हो। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ये सब देखने से क्या होता है, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग इज राइट, and what you need not focus on the results, you need to focus on your actions more. That means you have to be more sincere, more punctual, more disciplined, and you should be happy that you're doing things right. Magar one thing I can tell you, if you are seeing that your strength has increased, your sleep has increased, your things are much better, और आपका भी जो ड्यूरेशन है, मैं आपको जो बताया था 8 से 12 हफ्ते, यू हैव नॉट क्रॉस दैट। आप 1 महीने साथ आपका प्लेटू हो गया है, बट बाकी चीज़ आपका इंप्रूव हुआ है, तो आप प्लेटू में नहीं हो। अगर 2 महीने से, मतलब 1.5 महीना चलो ले लो, 1.5 महीना हो गया है पर आपका इंप्रूवमेंट हुआ है बाकी सब चीज़ में, आप प्लेटू में नहीं हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं में देखा है जो लोग वेट लॉस प्लान में आते हैं, दे डेफिनेटली मेक सम प्रोग्रेस, and they don't observe those good things. They always talk about the things which are not happening, but we forget small small things which we are doing every day, जिससे हमें रिजल्ट आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको मिस कर जाते हैं। उसी वजह से क्या होता है, हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन लेते हैं, एंड वी डू ऑल काइंड ऑफ सेल्फ सेबोटेजिंग थिंग्स विच डजंट अलाउ अस टू रीच आवर बेस्ट पोटेंशियल। तो आपका काम ये रहेगा कि आप कैसे भी करके ये सब चीज़ों को कैसे आप नेगेट कर सकते हो, कैसे इग्नोर कर सकते हो, और आप अपने एक्टिविटी में फोकस कर सकते हो। जितना आप एक्टिविटी में फोकस करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो रिजल्ट है वो अच्छा, इट विल कीप ऑन गेटिंग बेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑलराइट, सो आई होप इट मेक सेंस। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर प्लेटो में आ चुके हो फॉर 8 to 12 weeks, हाउ टू get over it. Right, if you have any questions, please put in the comment box, and I'd like to see you in the next video. Thanks a lot for watching. See you again. Bye bye.